tell me that what matters the most? The equipment matters the most, or the person behind the camera matters the most? What matters? What matters is like मैं अपना एग्जांपल देता हूँ शूट्स का. तो अगर बंदा अच्छा है, इज अ गुड मॉडल, द लाइटिंग इज गुड, तो जो मेरा पुराना कैमरा था Canon 200D, मैं उससे भी खींचूंगा ना तो आई विल गेट अ गुड फोटो. No, I'm just purely talking तो about. मैटर इक्विपमेंट डजंट दैट मच, वो मैटर करता है व्हेन आई डूइंग प्रोफेशनल वर्क और ये शूटिंग फॉर अ बिग ब्रांड. ऑब्वियसली यू हैव टू टेक सम बिग इक्विपमेंट्स जो हैवी 4K शूट करते हो, एनिमेट हो. लेकिन इफ यू आर शूटिंग फॉर योरसेल्फ तो Or for like सिंगल मॉडल्स और इफ यू आर योर ओन प्रोजेक्ट, इसमें इतना नीड नहीं है. तो मोस्टली लाइट्स मैटर्स एंड द व्हाट यू आर शूटिंग that matters. और ऐसा वीडियो कर रहे हो तो स्टोरी टेलिंग मैटर्स. Okay, so like if the photo is like giving some story out, like we see some cameraman shooting people in the train or in marine lines or the public places like Bandra and there. So from there they are like trying to capture a story through a photograph. Right? So मेरा जो पुराना कैमरा था उससे जो मैंने फोटो खींच कर डाले थे तो लोग वो देखते थे, लोगों को लगता था दिस इज सम कोई बड़े कैमरे से खींचा है. Then when I tell them that it's from Canon 200D, which is a like very basic camera, I was like shocked. Like, कैसे खींच लिया? मैंने कहा, camera doesn't matter that much. Lighting matters, model matters, model shooting matters. So how did you create that magic? Like, was it just by editing or like by that equipment only you used to create that magic? No, by learnings, experience. Okay. जैसे कि एडिटिंग मैं पहले से आता था मेरे को, कैमरा फोटोग्राफी स्टार्ट करने से पहले. उसके बाद फिर मैंने फोटोग्राफी भी सीखा, कैसे लाइट्स यूज होती है, कैसे कंपोजिशंस कैसे सेट करते हैं. तो वो सब रूल्स होते हैं कुछ, तो रूल्स के अकॉर्डिंग आप शूट करते हो तो विल गेट अ गुड फोटो. सम पीपल लाइक बाहर निकल जाते हैं और शूट करते हैं, दे डोंट नो कि कैसे लाइट्स आ रही है, कहाँ पे शूट करना चाहिए, बैकग्राउंड कैसा होना चाहिए, मॉडल्स के कपड़े कैसे होना चाहिए, कलर कॉम्बिनेशन वगैरह उनको नहीं आता. तो दे विल गेट अ लाइक वेरी बेसिक फोटो. देन दे लाइक कि ये तो नॉर्मल कैमरा है, तो नॉर्मल कैमरा से ऐसे फोटो आते हैं, अगर अच्छे फोटो चाहिए तो हमको बड़ा कैमरा चाहिए. फिर ये उनके माइंडसेट में जाता है, पर ऐसा एक्चुअली होता नहीं. So you basically use whatever you had in on your plate. Yes. Right? जो मेरा एक्सपीरियंस था हाँ उसके थ्रू. So basically how the sunlight is coming. Yeah. What basically the knowledge of the like उसमें डीप काफ़ी फोटोग्राफी में काफ़ी डीप चले जाओ कि what are the settings, what are the rules, what are the you know क्या बोलते हैं, वर्ड्स आ नहीं रहा मेरे को. अच्छा मुझे बता, I'll put this photo in editing. There was one photo of you, I still remember it, that a knife and a lemon cut in half. Like you told me that it took you 4 hours to shoot this particular snap. So what was the story behind that? So like 4 hours तो नहीं लगा था मेरे को, like 1.5 hours मेरे को लगा था. अच्छा. और after so many tries, like 20-30 tries 40 tries के बाद, तो एक नाइफ है जो एक बंदा पकड़ा हुआ है और एक बंदा खड़ा है मेरे बाजू में, मेरा भाई था वो, जो कि मैं फोटो खींच रहा हूँ, नाइफ कोई और पकड़ा है, वो मेरा दोस्त है, भाई है सॉरी, वो ऐसा नींबू फेंक रहा है और नाइफ एक ही जगह पे है. He was throwing the neevoos on the knife. Okay. And I clicking and on you were like perfectly on that snapshot where I was taking the burst shots. Okay. Like this camera can click like 10 photos per second. Is it? Okay. Yeah. So I was taking a burst shot. So then I selected the one. लेकिन उसमें भी हमें perfect shot काफी सारे tries के बाद ही मिला. So that took you 1.5 hours. Yeah. And then also some editing, and so it's looking like some cool picture. So basically, if somebody is starting out and he wants to become like you, a photographer, right? So what's the advice you'll give that person? Like, why is it difficult? Like anybody can have a DSLR, right? In this age. So what makes it difficult to become a photographer and get clients and things like that? So basically, if you wants to photography और आप पैशनेट हो उसके लिए, जैसे कि आपको स्टार्ट करना है फोटोग्राफी में, तो यू नीड टू बी पैशनेट. ओके. अदरवाइज आप नहीं कर पाओगे. तो इट्स नॉट लाइक कि जब जैसे कि
लोग को डॉक्टर बनना होता है तो दे स्टडी एंड ऑल, है ना, ते है ना, फिर उनका एक एग्जाम होता है, देन दे बिकम अ डॉक्टर। Basically, there is no set देयर procedure. इज नो सेट प्रोसीजर, हर किसी का जर्नी अलग अलग होता है, देयर इज नो एक फिक्स डायरेक्शन। Hmm. आप सीखो, असिस्ट करो लोगों को, पेशेंस होना चाहिए आपके पास, धीरे धीरे थ्रू एक्सपीरियंस आपको आ जाएगा। आपको सारी चीज़ें पता होनी चाहिए कि इस चीज़ में आपकी फील्ड में क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं, कैसा माइंडसेट होना चाहिए आपका। हाँ. जैसे कि आप एक चीज़ होती है कि आपको अगर फोटोग्राफी में आ रहे हो तो आपको पैसे के पीछे नहीं भागना चाहिए, आपको आर्ट के पीछे भागना चाहिए, पैसा अपने पल है। अच्छा. हाँ, तो ऐसा माइंडसेट पता होना चाहिए आप, देन यू कैन डू समथिंग बिग। जैसे कि मैं था, मैंने कितना कितना वो किया, लोगों को असिस्ट किया, सीखा काफ़ी सारा, 2-3 साल तक यहीं पे था, मैं कुछ कर नहीं रहा था, तो हाँ. छोटे मोटे काम, कुछ बड़ा कुछ था भी नहीं। हाँ. तो ऐसा पेशेंस था मेरे अंदर कि हाँ होएगा, एक दिन होएगा, एक दिन होएगा। अभी भी इतना नहीं हुआ भाई, मैं बड़ा फोटोग्राफर नहीं बना हूँ, हाँ. पर जस्ट एक गुड स्टार्ट मिल गया मेरे को। हाँ. But I think so. You have achieved a level of certainty now. I mean, when it comes to the person who is just starting out, I think so. With YouTube also, it's very similar, and with the camera, like photography, it's also very similar, right? I mean, anybody can start it, but to get to a certain level, it takes a lot of dedication, passion, and consistently grinding every day and working on yourself. So that being said, let's talk about a YouTuber called as Camera Wale Bhaiya. You might be knowing him, right? So he is somebody who is bringing a different kind of art to this video creation, right, and YouTube. So why aren't there many Camera Wale Bhaiyas on YouTube? Like, what stops people like you to coming on YouTube and show their art? Because you are the people who are actually capable of creating such art a lot. सो कैमरा वाले भैया पहले तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और उनकी वीडियोस देखें, काफ़ी स्टोरी टेलिंग उनकी काफ़ी अच्छी है, बहुत स्ट्रांग है। तो उसने उस बंदे ने उस डायरेक्शन में गया है, लाइक बेसिकली ऐसे आप फोटोग्राफी में आते हो तो देर आर सो मेनी जॉनर्स। मैं फैशन में गया, अच्छा. ठीक है, तो वो गया यूट्यूब में, ब्लॉगिंग Yeah. स्टोरी टेलिंग, फोटोग्राफी, स्ट्रीट फोटोग्राफी उसने स्टार्ट किया था। बेसिकली उसका इंटरेस्ट उसमें था, यूट्यूब में हाँ. और ब्लॉगिंग में। एक एक एस्पेक्ट उसने पढ़ा होगा, सीखा होगा, ट्राई करा होगा, उसके बाद उसने ये सब चालू करा, और वो बस मेहनत का काम है ब्रो, मेहनत करो हो जाएगा। हाँ. मैं भी यूट्यूब करने की सोच रहा हूँ, बट इट्स लाइक कि मेरे पास इतना टाइम नहीं रहता फॉर यूट्यूब, पर फॉर यूट्यूब यू नीड टू बी वेरी कंसिस्टेंट। मेरा काम मोस्टली ऑफलाइन होता है, लाइक फाइंडिंग क्लाइंट्स फॉर फैशन। मैं फैशन शूट्स करता हूँ फॉर ब्रांड्स, डिज़ाइनर्स मोस्टली, तो वो मोस्टली ऑफलाइन होता है। उधर मैं कैसे शूट कर सकता हूँ, मेरे पास ऐसा, अगर मैं ऐसा डालूँ कि फोटोग्राफी मेरे सेट पे क्या हो रहा है, वो सब चीज़ें, कि मैं ब्लॉगिंग करने आऊँ, मेरे सेट पे ये हो रहा है, वो हो रहा है, ब्ला ब्ला ब्ला, मैं उस पर फोकस करता हूँ कि वो टाइम का जो यूटिलाइजेशन है ना, वो मैं कैसे मैं अपने शूट्स को और बेटर कर सकता हूँ, उसमें यूज़ करता हूँ, इंस्टेड ऑफ कि मैं कैमरा लेके आ जाऊँ और हाँ that would be extra work added to your schedule. या ऑल्सो मैं माइंड को थोड़ा सा फ्री रखता हूँ, ताकि मैं शूट करने वाला हूँ उस पर फोकस कर सकूँ। मे बी इन द फ्यूचर, नाउ इट्स लाइक के हर बार मेरे को नए नए चैलेंजेस मिलते हैं। Okay. कि ये शूट पे ये चैलेंज है, ये शूट पे ये चैलेंज है, तो आई कांट बी लाइक मैं कैमरा लेके पहुंच जाऊँ और मैं ब्लॉगिंग करूँ। What are certain challenges? I'm really curious to know what are some challenges that you get while photo shoots. सो बेसिकली क्लाइंट्स की कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं, हाँ. कि दे वांट दिस पर्टिकुलर फोटो और दिस पर्टिकुलर वीडियो इन दिस लाइट ओनली। Okay. सो वो हमारे लिए एक चैलेंज होता है कि हम लाइट को कैसे क्रिएट करें। तो हम जाते हैं, काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, ये लाइट ऐसे आ रहा है, फिर हम वो वैसे नहीं आता है, तो फिर हम कुछ लाइट्स को डिफरेंट टाइप से देते हैं। कभी कभार सिमिलर आता है, कभी कभार बहुत अच्छा आता है, कभी कभार थोड़ा सा कम आता है, तो वो एक हमारे लिए चैलेंज होता है। वीडियोज़ में भी दे वॉन्ट दिस सर्टेन इफेक्ट, दिस सर्टेन टाइप ऑफ शॉट, तो वो पूरा प्लानिंग करनी पड़ती है, तो वो हमारे लिए चैलेंज रहता है। और ये हर शूट्स पर अलग अलग होता है, वो भी हमारा ऐसा जो शूट से पहले भी काफ़ी सारा काम रहता है। ऐसा नहीं कि मेरा काम स्टार्ट हो रहा है ऑन शूट डे, शूट से 1-2 दिन पहले भी हमारा काम स्टार्ट होता है। हमारा मूड वूड बनाना पड़ता है कि कैसा हम शूट करने वाले हैं, प्लानिंग, कौन फोटोग्राफर है, फोटोग्राफर तो मैं ही है कौन मेकअप आर्टिस्ट है, कौन स्टाइलिस्ट है,
कैसे होने वाला है ये, क्या प्रॉब्लम्स आने वाली हैं, उसका कैसा सोल्यूशन है, क्या रिक्वायरमेंट्स हमें रेंट करने हैं। तो 1-2 दिन तो उसमें भी जाते हैं। फिर आप शूट हमारा हुआ, शूट के बाद कैसे एडिट करना है, क्या इफेक्ट चाहिए, उसमें एडिट होता है, उसमें करेक्शंस होते हैं, क्लाइंट को भेजते हैं, क्लाइंट बोलता है ये नहीं ये करो, करेक्शंस होते हैं, फिर पूरा एडिट कर दिया हमने 3 मिनट का, क्लाइंट बोलता है गाना चेंज कर दो, तो फिर से नया मेहनत। हाँ तो काफ़ी मेहनत है ब्रो, मतलब काफ़ी चैलेंजेस है। आफ्टर शूट्स ऑल्सो इट्स कंटिन्यू गोइंग ऑन एंड गोइंग ऑन। या तो ऐसा एक प्रोजेक्ट था कुछ हमारा जो कि स्टार्ट हुआ था 1-2 महीने पहले, और 2 महीने बाद तक उसका एडिटिंग खत्म नहीं हुआ डैम ब्रो था। ऐसा भी होता है। this might be taking a lot of toll on your sleep and all. या और मैं स्लीप कॉम्प्रोमाइज नहीं करता इतना। कभी कभी शूट्स बड़ा हो रहा है, 12-12 घंटे का शूट है, देन सम टाइम इज अ डिफरेंट थिंग, बट मैं डेली अगर तुम्हें भी थोड़ा पीस ऑफ माइंड चाहिए ना काम को अच्छे से करने के लिए, यू नीड टू बी, बॉडी में थोड़ा एनर्जी होना चाहिए। Obviously you need sleep for performing at high level. Yeah. So basically since I have known you, like what I have gauged you are type of an introvert and a shy person, right? I used to be an introvert. Okay. Now I'm like थोड़ा सा मैं ग्रो हो गया हूँ उसमें। हाँ कि सोशल सिनेरियोस में आजकल मैं जा रहा हूँ, मिल रहा हूँ लोगों से, तो इट्स गेटिंग बेटर। तो यू कैन से so at the start you were like a little shy. Yeah. So that's what I wanted to ask, that like how did you get to the point where you learn to deal with people? Because what I'm gauging is like photography is a skill of a camera, but then it's also a skill of people, like getting clients. So how did you like get to the point where you are like dealing with people well? अभी मैं उतना परफेक्ट भी नहीं हुआ, अभी भी सीख रहा हूँ। और बस यही था, मेरा स्टार्ट हुआ था वहाँ से, जो मैंने फोटोग्राफी को स्टिच करना स्टार्ट करा था, वहाँ पे मैं लोगों से बात ही करता था, खुद से ही बात ही करता था जाके। हाँ उनके बारे में। हाँ तो और मैं काफ़ी देखता भी था कि कैसे इसको इम्प्रूव कर सकते हैं, वीडियोज़ एंड ऑल। आई वाज लाइक वेरी यूट्यूब एडिक्ट। या तो मैं बहुत सारी चीज़ें देखता था यूट्यूब पे, साइकोलॉजी के ऊपर, कैसे लोग सोशल बिहेवियर्स के ऊपर। तो वो चीज़ें मैं सीखता था, अप्लाई करता था, धीरे धीरे इम्प्रूव होता जा रहा था। मैं वो उस जगह इन्वायरमेंट में जाता था तो मेरे को चीज़ें काफ़ी सारी सीखने को भी मिलती थी। 2 लोग बात कर रहे हैं मेरे सामने, वो लोग कैसे बात कर रहे हैं, क्या वर्ड्स यूज़ कर रहे हैं, ब्ला ब्ला ब्ला। तो ऐसे ही वो सीखा हूँ, इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ, सीख रहा हूँ, इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ, सीख रहा हूँ, इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ। तो अभी भी सीख ही रहा हूँ, अभी भी थोड़ा लेवल 2 हो गया मेरा, लेवल अप हो गया थोड़ा सा, धीरे धीरे और अच्छा हो जाऊँगा मैं। देन फिर बड़े बड़े क्लाइंट्स मिलेंगे। अच्छा। बेसिकली बड़े क्लाइंट्स लेने के लिए यही आपका कम्युनिकेशन इम्पोर्टेंट रहता है। अभी फोटोग्राफी के स्किल में इफ यू सी who are the people who you look up to, one, and what are the areas you find that you can be better photographer? Areas as in? Like what areas of photography you think that you can like still improve, there is a room for improvement, like, and skill wise, and who are the people who you like see and say that wow, this is mind blowing? Yeah, so basically the guy who was assisting is the best in the industry. What's his name? Santosh Mishra. Yeah. Okay. So you can check his Instagram, Santosh Mishra Photography is his Instagram. So it's like best in the market. And I'm glad I'm like वैसे present करता हूँ, मैं ना मिला उस बंदे से, तो काफ़ी सारे सीखने को मिला। वो भाई बेस्ट है, तो वो एक इंस्पिरेशन है मेरा, मैं उसको लुकअप करता हूँ। There are channels also जहाँ से मैं काफ़ी सारे सीखता हूँ। But what is that particular area where you think you can improve in, just in terms of photography? Skills. Right. So यार ऐसा कुछ है नहीं, मतलब है भी और नहीं भी है। अच्छा। क्योंकि फोटोग्राफी एक ऐसा है, उसमें जितना सीखो उतना कम है। there is no fixed border कि यहाँ इस border पे आ गए, अब now you know everything, ऐसा होता ही नहीं। Yeah, like that's with everything, I think. Yeah. Like right. You never get to the end, you never get to the peak. Yeah. तो वो learning है bro, like जितना सीखते जाओ so it may be like you keep doing it, and once you learn,
in hindsight you see that, oh, I learned this. Then you see someone doing something better than this. जो आप काम कर रहे हो फिर सामने वाले देखते हो कि वो आपसे अच्छा कर रहा है, ये वो आपसे भी अच्छा कर रहा है, वो उससे भी अच्छा कर रहा है, तो there is वो है ही नहीं. वो बस ये है कि अपना आर्ट है, उसमें कॉन्फिडेंट रहो. Wow, bro. Like, this is the best point to end this particular podcast. You know, before we end this podcast, like, there are many people who are right now would be struggling in any field, maybe photography, some in football, some in acting, different. I know my audience, right? So what's that one message that you would want to give them, right? There might be some Aarav listening to this podcast, sitting in Gwailior, anywhere in this country or in this world, thinking to take that first step. So what would you like to tell that person? So ये मैसेज मैं ऐसे ही दे सकता हूँ कि मैं मैसेज दे रहा हूँ अपने यंगर सेल्फ को. हाँ. तो अगर मैं यंगर सेल्फ को मैसेज दूंगा तो मैं उसको बोलूँगा कि तूने काफ़ी अच्छा डिसीजन लिया, तू पैशनेट था, तू कंसिस्टेंट था अपने आर्ट के लिए, तो मतलब तेरे अंदर एक भूख थी कुछ करने की, बड़ा करने की. तो बेसिकली थोड़ा सा कट डाल सकते हैं इसमें. बेसिकली बस लगे रहो, करते रहो, सीखते रहो और अच्छे लोगों के साथ करो. एनवायरनमेंट अपना अच्छा बनाओ, सराउंडिंग अपना अच्छा बनाओ, अच्छे लोगों के साथ रहो और अच्छा काम करो. दिस इज द लाइक फाइनल थिंग आई वांट टू से. Thank you so much, Aarav. It was really what the fuck, you know, it was really nice to have you on my podcast. Thank you so much, bro. Yeah. Thank you for inviting me. Thank you so much for watching this podcast till the end. If you are watching till the end, I'm mentioning the Instagram link to his handles. If you want anything, if there's a model who's watching Aarav and wants to get any photo shoot done, you can contact him on his Instagram. You can contact me on Instagram. Thank you so much. We can do some great art.